A very good morning to one and all present today. On behalf of DME Media School, I, Dr. Manasvi Maheshwari, Associate Professor, Media School, welcome Mr. Pradeep Sharma, eminent broadcaster, commentator, and actor on day 2 of session 3 of Session Orientation Program SOP 2022. I also welcome Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, all faculty members and students of Media School. Mr. Pradeep Sharma will address the students on modulation and presentation of radio program today on this day 2 of SOP 2022. Before I hand over it to Mr. Prasharma, I request Dr. Saxena and Dr. Bala to felicitate the guest with a small token on behalf of DME. This is the second day of session orientation program, something which we started 2 years back, and the whole idea behind is that not only when the students are joining the session for the first time in the college, that time the orientation is required, but we set this tradition that whenever 1 year is completed and next year is taking off, then this some kind of orientation has to be there, and that is how in the beginning of the third semester and in the beginning of the fifth semester, we started this tradition. But somehow this year, the sessions are not in order. That's the impact of Corona yet. And that is how the fifth semester is started 1.5 months or 2 months back. So that time we had this session orientation program, but that had to be divided into two parts. That time it was part one, now it's part two, because now the third semester is starting. And we always try, and this time also we are doing the same, we always try that whatever subjects are being taught in this semester, in this year. Some orientation is done in those subjects by the people who are pioneer in the industry and who have done substantial work in that area. And since in radio, particularly in third semester, there's one full paper and one elective paper is there. And otherwise also when it comes to making a presentation or making some kind of anchoring in any kind of program, what is the most important thing is how to speak and how you use your modulation, how you work on your voicing. So all these things become important. And incidentally, Mr. Pradeep Sharma, called me last week, and that was just a chance because I was thinking that he is still in Mumbai. He is a known name if you would have ever heard the commentary of the Republic Day. So it has been there mostly in voice for time immemorial, and otherwise also he is a master in commentary. He has been a very eminent broadcaster, and he has also been an actor. And you would have seen seen him in number of films and TV serials. Because till recently he was there in Mumbai only. So he is a multifaceted personality. So as soon as I came to know that he is here, so I invited him to have this to give this kind of orientation, wherein he will be speaking as to how you can speak better and how you can make your presentation better. So I welcome Mr. Pradeep Sharma in this session, and I hope that a lot of good things will come out from this session. Thank you all. Thank you, sir. Sir ने already Mr. Sharma के लिए बहुत सारी बातें बता दी हैं, but still I would like to read his profile. Mr. Pradeep Sharma is a voice trainer, Hindustani language, that is Hindi, Urdu diction and pronunciation, commentator, anchor, writer, producer, instructor, voiceover and dubbing artist, and he has more than 40 years of experience of media industry. He has been a cricket commentator for many years now with Hum FM Dubai, Doordarshan, All India Radio, ESPN, as well as Republic Day Parade and Beating Retreat Independence Day commentary for Doordarshan. He has also done voiceovers and production, mainly news capsules, short films, educational programs, topical discussions, etc., and worked for Zee, NDTV, Doordarshan, National Geographic, Discovery, History Channel, PTI, UNI, ANI, IGNU, IT Ministry, Films Division, Commercial Audio and Video Tracks.
He has been a visiting faculty and instructor with renowned institutes and universities, Zima, Bharatiya Vidya Bhavan Mumbai, Bharatiya Vidya Bhavan New Delhi, International Institute of Mass Media, to name a few. Sir has also acted in many films and TV serials like Chidiya Ghar, Neeli Chhatri Wale, Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, Crime Patrol, Balika Vadhu, Savdhan India, CID, and many more. Now I request Mr. Pradeep Sharma to take over from here. थैंक यू अमरीश जी, सुष्मिता जी, मनस्वी जी, विशाल भी यहाँ खड़े हैं, गरिमा जी और आप सब स्टूडेंट्स। मेरे बारे में जितना कहा पता नहीं मैं उस कसौटी पर खरा उतरूँगा या नहीं उतरूँगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम किया है उसके आधार पर मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ अनुभव ज़रूर शेयर करूँगा। आप में से कोई ये बताएगा कि कितने ऐसे हैं जो रेडियो सुनते हैं? सिर्फ 2 या 3 हाथ उठे। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ किस तरफ जा रहे हैं? ग्लैमर की तरफ। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, अगर हम खेलते हैं या हम एक जिम्नास्ट हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपका संतुलन, आपका बैलेंस। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको खड़ा होना आना चाहिए। आप टीवी करें, आप फिल्म्स करें, आप सीरियल्स करें, कुछ भी करें, लेकिन आपका आधार आपकी आवाज़, आपकी भाषा, आपका प्रोनाउंसिएशन, जिसे हम उच्चारण या तलफ़ुज़ कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ये हमने मुंबई में कई बार देखा कि कोई लड़का बहुत हैंडसम है, लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब उनके ऑडिशन हुए तो जो उनको एक बहुत अच्छा रोल मिलना चाहिए था, मिल सकता था, सिर्फ उनकी भाषा की वजह से या जो उनकी प्रेजेंटेशन है उसकी वजह से वो हाथ से निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो करियर आपका यहाँ आ सकता था वो धड़ाम से नीचे आ जाता है। आप अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुतों को बता चुके होते हैं कि मुझे फला फिल्म मिलने जा रही है और मैं उसमें एक हीरो या हीरोइन की हैसियत से या बहुत अच्छे एक्टर की हैसियत से मैं उसमें काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन आपकी बात वहाँ बिगड़ जाती है। रेडियो के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता भी होगा, बताया भी जाएगा। रेडियो के 3 उद्देश्य होते हैं: इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। ये 3 इसके मुख्य आप कह सकते हैं कि कारक हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इस तरफ से अगर देखा जाए तो विविध भारती आपने नाम सुना है कभी? क्या है ये? क्या है? ऑल इंडिया रेडियो जी। विविध भारती एक कंप्लीट रेडियो चैनल कहा जा सकता है। उसकी एक वजह है, ऑल इंडिया रेडियो का पार्ट है। उसके प्रोग्राम्स में आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और आपका मनोरंजन तो होता ही है। उसकी वजह है कि आपको उसमें फिल्मी गीत भी सुनने को मिलते हैं, उसमें आपको झलकियाँ भी सुनने को मिलती हैं, आपको टॉक्स वो सुनने को मिलती हैं। लेकिन असली चीज़ ये है कि आप रेडियो में किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। उसकी पहली शर्त है आपकी आवाज़ साफ हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोल रहे हैं और वो आपके सुनने वाले को समझ में ना आए। ये बहुत ज़रूरी होता है। भाषा की जानकारी, आपका उच्चारण वो क्या है। अभी हम मैम के रूम में बैठे हुए थे और एक बात वहाँ चल निकली जो मैं यहाँ बताना भी चाह रहा था। टीवी में हम एक स्क्रीन के साथ बंद कर रह जाते हैं। उस पर जो आपको दिखाया जा रहा है उसके अलावा आप ना यहाँ जा सकते ना यहाँ जा सकते, आप कुछ और सोच भी नहीं सकते। रेडियो, अगर आपको उस वक्त 2 लाख आदमी सुन रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, तो 2 लाख अलग अलग पिक्चर्स आप क्रिएट कर रहे हैं लोगों के मन में। पहली पिक्चर, ये जो हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं ये कैसे दिखते होंगे, आवाज़ से आप एक अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं। इनका कद ऐसा होगा, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, ये बोलते वक्त शायद कुछ इस तरह की मूवमेंट करते होंगे। ये सब आपके मन में आता है।
जैसे मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए रामलीलाएं अब आएंगी कुछ दिनों बाद और आप उसमें सीता का वर्णन कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में। नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अभी तक रामलीला नहीं देखी होंगी, तो उनके मन में एक कैसी तस्वीर आएगी सीता की, जो उनकी पोशाक पहने हुए होंगी। सऊदी अरब में अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो उनकी सीता ने बुर्का पहना हुआ होगा, वो उसको उसी रूप में देखेंगे। तो आप एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, जब आप एक कहानी सुनाते हैं तो क्या वजह है कि रेडियो पर सुनते हुए आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आपके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोलने वाला है वो इस तरह उस कहानी को आपके सामने रखता है, आप उसमें डूब जाते हैं। आप जानते हैं कहानी है, इसके बाद भी आप उसमें डूब जाते हैं और आपके आंसू बह निकलते हैं, या आप खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं। किस लिए? रेडियो के प्रोग्राम्स के बारे में अभी कुछ और भी बातें होंगी, लेकिन प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ी हुई एक अहम चीज़ है जो आपके टीवी प्रोग्राम्स में भी आपकी मदद करेगी, आपकी दूसरी बातों में भी मदद करेगी, और वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ज़बान का साथ नहीं दे रही तो आप सफल नहीं हो सकते, मानकर चलिए। जैसे अगर आपके चेहरे पर ममता झलक रही है, आप गुस्से की बात करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। आपके चेहरे पर तनाव है, आप प्यार भरी बात करके देखिए, नहीं कर पाएंगे। आप लाइए चेहरे पर बिल्कुल एक ममता आपके चेहरे से टपक रही हो और किसी को आप कहें कि बाहर निकल जा, कैसे कहेंगे? जा बाहर निकल जा, कोई नहीं जाएगा, कहेंगे मैं तो नहीं जाता। और एक जगह जब आपकी आवाज में ठहराव आ जाता है, वो सब कुछ बता देता है। आपने शाउट भी किया, आपने कहा निकल जा, मैंने कहा निकल जा, निकल जा, उसके बाद मैंने कहा निकल जा। जब ये ठहराव आ गया, इसका मतलब ये अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। ये चीजें आपके इसलिए काम आती हैं जब आप एंकरिंग करते हैं, आप न्यूज़ बोलते हैं, आप कोई और प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, तो आप एक सा नहीं बोलते। आपने नोटिस किया होगा, आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, क्या एक जैसा बोलते हैं? कभी आप आपस में थोड़ा सा लड़ाई भी कर लेते हैं। घर में जब आप लेट हो रहे होते हैं तो अपनी मदर को आप बाकायदा हुक्म देते हैं हर चीज़ का। तो आपकी बातचीत का अंदाज बदलता रहता है परिस्थितियों के हिसाब से। आप एक जैसा पूरे दिन नहीं रह सकते। यही आपके प्रोग्राम्स में भी नज़र आता है और आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप न्यूज़ बोल रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट होती है। न्यूज़ आप जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब आप ड्रामा कर रहे हैं तो आपकी डायलॉग डिलीवरी, यानी जो संवाद अदायगी है, वो कैसी है, वो मायने रखती है। आपको एक चीज़ अब अपनी आदत में शुमार कर लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स सुनना, देखना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, यह आपकी आदत होनी चाहिए। आप जिस फील्ड से जुड़ने जा रहे हैं, अगर आपके पास सामान्य ज्ञान नहीं है, करंट अफेयर्स की जानकारी नहीं है, तो आप किसी डिस्कशन में कैसे कामयाब हो सकते हैं? हो सकता है कि जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो आप ही के ऊपर भारी पड़ जाए, वो ये भांप लेगा कि आपको कुछ नहीं आता। जहां आपके पास तथ्य होंगे, जानकारी होगी, वहां आप काउंटर कर सकते हैं। ये कब होगा? जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप धारा प्रवाह बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये होता है आपके पास, क्योंकि अगला शब्द आप ढूंढ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा वाक्य क्या होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं ताकि आपकी आवाज़ से वो झलके। जल्दबाजी मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोलने के लिए इतना जल्दी बोलते हैं कि जैसे इसको हमें सिर्फ ख़त्म ही करना हो। आपका उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। आपको अपनी हर बात को जमा कर बोलना चाहिए ताकि सुनने वाला उसे समझ पाए। अगर मेरी बात को आप समझ नहीं पाए तो मुझे लगता है कि फिर
जितनी देर भी मैं बोलूँगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है आप मेरी इज्जत रखते हुए आप मुझे सुन रहे हो, उसके बाद क्या कहेंगे आप कि एक तो काम की चीज़ बता दी होती जो हम सीख लेते। लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि आपका ध्यान यहाँ पर बैठे हुए भी कहीं और है। यहाँ मैंने 2 स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने जम्भाई लिए है अभी, वो अभी से बोर होना शुरू हो गए हैं। जब आप बोर होना शुरू हो जाते हैं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। एकाग्र चित्तता जिसे हम कहते हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप मीडिया से जुड़ते हैं, आप रेडियो से जुड़ते हैं, तो आपको हर चीज़ उसमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आप बारीकी से देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए किसी वजह से आज आप यहाँ से एक रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं और जो फंक्शन होना है वो किसी कारणवश थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब क्या करेंगे आप इररिलेवेंट बात भी नहीं कर सकते। तो आपके पास जो जानकारी है वो काम आती है। 2 या 3 बार हमारे साथ ऐसा हुआ है जब हम लोग दूरदर्शन के लिए कमेंट्री कर रहे थे, रेडियो के लिए कर रहे थे, और अचानक वहाँ प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव हो गया और ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर 1 घंटा लेट आएंगे। आप एयर पर जा चुके हैं और ये ब्रॉडकास्टिंग का उसूल है कि जब आप एक बार चले गए तो फिर आप उस दौरान वापस नहीं आएंगे। शायद आप विश्वास करें ना करें, हमने 1 घंटा इस तरह निकाला। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास अपनी तैयारी थी, आपके पास कुछ जानकारी थी। आप जिस वक्त कमेंट्रीज करते हैं आप उसे लिखकर नहीं करते। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि जो आपने क्रिकेट कमेंट्री की या 15 अगस्त की 26 जनवरी की या कोई और भी की, तो आप लिखकर ले जाते हैं, तो हंसी आती है। आप मुझे बताइए, हम कैसे लिख कर ले जा सकते हैं? टॉस होगा पहले, कौन जीतेगा नहीं पता। जो टीम टॉस जीती है वो पहले फील्डिंग करेगी या बैटिंग करेगी नहीं पता। कौन ओपनिंग करने आएगा, पहला ओवर कौन फेंकेगा, पहली बॉल पर क्या होगा, 6 लगेगा, वाइड होगी, नो बॉल होगी, या वो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, कुछ नहीं पता। आप कैसे लिख कर ले जा सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो एक्शन, वो आप एक्सप्लेन कर सकें और सही कर सकें। क्रिकेट कमेंट्री में क्या होता है, जब आप देखते होंगे कोई दाएं हाथ से बल्लेबाजी करता है, कोई बाएं हाथ से करता है। जो आप में से क्रिकेट खेले होंगे उनको पता है कि अगर मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूं तो मेरे इस तरफ मिड विकेट आएगी। लेकिन कभी कभी क्या गलती होती है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उसके लिए वो उस साइड को बोल देते हैं आपके मिड विकेट, जबकि वो खेलेगा तो मिड विकेट उसके इस तरफ आएगी। तो ये आपको बहुत सजग रहना होता है। हम सब चाहते हैं कि काश हम प्रोग्राम करें, हमें भी लोग सुने, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई मोतीचूर का लड्डू नहीं है, मुंह में रखा गप और हो गया, या कोई 2-3 कैप्सूल्स आपको दे दिए और कल से आप आरजे बन गए। अब आप जाकर रेडियो में प्रोग्राम्स कर सकते हैं, न्यूज़ बोल सकते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? नहीं। वजह क्या है? आप लोग मीडिया से जुड़ना चाहते हैं ना? मीडिया से कैसे जुड़ पाएंगे? एक बात मुझे बताइए जो मैं अक्सर पूछा करता हूं। मान लीजिए मैं एक MBBS डॉक्टर हूं, क्या मैं हार्ट सर्जरी कर सकता हूं? मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या मैं हार्ट सर्जरी कर सकता हूं? क्यों? मैं डॉक्टर हूं भाई, क्यों नहीं कर सकता? नॉलेज नहीं है। तो मीडिया से आप जुड़ना चाहते हैं बिना किसी नॉलेज के, कैसे जुड़ पाएंगे? 1 साल में पूरे भारत में हजारों मीडिया पर्सन तैयार हो जाते हैं। काम किस आधार पर मिलेगा आपको? आपकी नॉलेज क्या है? यह भी हो सकता है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ गए, वहां पर भी तो आपको मेरिट के आधार पर ही कोई नौकरी मिलेगी। अगर 50 वैकेंसीज हैं तो शायद 20,000 एप्लीकेशंस आई होंगी।
अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी ग्रेजुएट हूँ, ये भी ग्रेजुएट हैं, जिनको यहाँ पर चुन लिया गया है, उनके तो ग्रेजुएशन में सिर्फ 50% आए थे, मेरे तो 98 आए थे। बात ये नहीं है कि उनके कितने मार्क्स आए थे, बात ये है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास उस फील्ड में काम करने के लिए कितनी काबिलियत है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी भाषा, जो मैंने पहले कहा था। और अब आप एक प्रैक्टिस छोड़ दीजिए जो हम स्लैंग में बात करते हैं। मेरे पास जब पेपर्स आते हैं कई बार चेक होने के लिए, सर आप हैरान रह जाएंगे, उसमें स्लैंग दैट को भी DAT, तो ये भाषा जब आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आप मुझे बताइए कि आप एक कामयाब मीडिया पर्सन कैसे बन पाएंगे। अभी मैं आपसे 2-4 शब्द पूछ लेता हूं ताकि आपको उनकी अहमियत पता लग जाए। आप टीवी न्यूज़ देखते हैं कभी कभी या नहीं? देखते हैं। खुलासा शब्द बहुत इस्तेमाल हो रहा है, क्या मतलब है इसका? एक्सपोज करना। ये आपने कैसे अंदाजा लगाया? 2-3 हाथ बड़ी जल्दी खड़े हो गए, उधर से भी एक हाथ खड़ा हुआ, क्यों? सिर्फ खुलासा आपने उसमें खुल को कुछ आपने समझ लिया कि ये खोलकर बताने वाली चीज है, जबकि इसका सबसे गलत इस्तेमाल हो रहा है। खुलासा का मतलब होता है किसी चीज की समरी, सार, संक्षेप, निचोड़। जैसे ऑल इंडिया रेडियो में अगर आप उर्दू की खबरें सुने, आज भी उनका एक टिपिकल स्टाइल है, ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप प्रदीप शर्मा से उर्दू में खबरें सुनिए, सबसे पहले खबरों का खुलासा यानी हेडलाइंस, सुर्खियां, मुख्य समाचार, ये उसका मतलब होता है। आप किसी भी भाषा के शब्द को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में, विद राइट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ, तो वो अपना मतलब बिल्कुल क्लियर कर देगा। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी। हिंदी तो अगर मैं बोलूंगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, लिख कर देता हूं मैं आपको। मैं अगर विशुद्ध हिंदी में आपसे बात करना शुरू कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें 80% उर्दू के अल्फाज हैं, और उर्दू में संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी, इन सब के शब्द हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे दिन में हम कुल मिलाकर 8 या 9 भाषाओं के शब्द बोलते हैं, लेकिन जब गलत बोलते हैं तो हम कई बार गालियां दे जाते हैं। क्या आप गाली स्वीकार करेंगे किसी की? मान लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, और आपने किसी को आम भाषा में जो हम कहते हैं ठोक दिया। हो सकता है उसके बेचारे की हड्डी टूट गई, यह भी हो सकता है कि उसकी जान चली गई। क्या आप यह कहकर बच सकते हैं कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी? नहीं, क्योंकि अनजाने में किया गया अपराध भी अपराध होता है। मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूं कि मैं सबको गाली भी दे दूं और मैं बाद में कहूं नहीं नहीं, ये तो शब्द ऐसे इस्तेमाल होता है तो मैंने इसलिए इस्तेमाल कर लिया, जबकि मैं अंदर ही अंदर खुश हूं कि मैंने गालियां भी दे दी। तो आप नहीं जानते कि आप जाने अनजाने कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खुलासा एक हो गया। मान लीजिए हमने कहा कि फला फला मंत्री ने आतंकवाद की खिलाफत करते हुए कहा, यह खिलाफत क्या हो गया फिर? अगेंस्ट। कैसे लगा आपको ये खिलाफत? आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि इसका मतलब अगेंस्ट? कैसे? क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द को सुनते आ रहे हैं, जबकि खिलाफत का वो मतलब नहीं होता। एक सीधा सा शब्द है विरोध, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, सब समझ जाएंगे। मेरे साथ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स होते हैं और वो विरोध का शब्द इस्तेमाल करते हैं बाकायदा अपनी कमेंट्री में। अगर आपको मुखालफत नहीं पता, मैं इसलिए एक शब्द बता रहा हूं क्योंकि ये आप रोजाना इनसे 2-4 होते हैं। खिलाफत, ये आपके पास आएगा, खुलासा ये आएगा, क्योंकि खिलाफत का मतलब खलीफा से जुड़ा हुआ है। जैसे जो इस्लाम मानने वाले हैं, उन्होंने खुदा की खिलाफत ली, उनका विरोध नहीं किया, उनका आधिपत्य स्वीकार किया।
दो राजाओं की लड़ाई हुई, एक हार गया, तो पहले क्या होता था, वो अपना मुकुट उतारकर उनको दे देता था, यानी मैं आपका आधिपत्य स्वीकार करता हूं। इसका मतलब जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, या जिनको आप सब कुछ मानते हैं, वहां खिलाफत का इस्तेमाल होता है। ये हो गया। एक नाम होता है, पता नहीं क्या होता है, अजीज अजीज अजीज, कुछ ऐसा सा नाम होता है ना, क्या होता है? यहां से एक आई आवाज, क्या? अजीज, अजीज। अच्छा, अजीज भी किसी ने बोला अभी? किसने बोला? कान मेरे खड़के थे। ये दो तीन तरह से ही बोला जा सकता है, अजीज, अजीज या अजीज। इराक के एक बारी फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, फॉरेन मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान के, जिनके नाम के आगे यही लगा हुआ था, अजीज। अजीज मतलब प्रिय, प्यारा, या बहुत क्लोज जो होता है। लेकिन जब आप उसे अजीज लिख देते हैं, जी बिल्कुल, उसका मतलब होता है इंपोर्टेंट, नामर्द। और आप कैप्शन क्या देते हैं? मोहम्मद अजीज। वो पूछेगा आके आपसे, भाई कहां से आपको खबर मिली है? और अगर वो आपको सू कर दे तो क्या करेंगे आप? एक और शब्द, उसके बाद मैं कुछ और बातों पर आता हूं। एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, अगर आप न्यूज़ चैनल्स में देखें तो आपको हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर मिल जाएगा, न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा, तमाशबीन। ये मैं अक्सर बताता हूं, क्या होता है मतलब तमाशबीन? जैसे एक्सीडेंट हुआ, लोग तमाशबीन बने खड़े रहे, स्पेक्टेटर्स। अगर आप मूक दर्शक कहते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? क्योंकि आप शब्द नहीं जानते। तमाशबीन उर्दू का शब्द है। अगर आपको तमाशाई नहीं पता तो आप तमाशबीन मत बोलिए। तमाशबीन का मतलब होता है वो अय्याश लोग जो वेश्याओं के कोठों पर जाते हैं। और आपका कैमरा पैन हो रहा है, एक्सीडेंट हुआ, लोग तमाशबीन बने खड़े रहे, आपने एक साथ सबको वहां अय्याश कह दिया। अब देखिए आपको कितनी हंसी आई, आ रही है ना? आपको हंसता देखकर मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जब आपको ये जानकार लोग सुनते हैं तो उनके चेहरे पर हंसी नहीं होती, वो सिर्फ ये कहते हैं, इन्हें अपने चैनल में नौकरी किसने दी है? आप ये नहीं कह सकते कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। ये एक टीम वर्क होता है। कई बार क्या होता है कि आपके जो एडिटर हैं उनसे एक गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे ठीक करें, बशर्ते आपके पास जानकारी तो हो। अब आते हैं हम, जो रेडियो की एक बहुत ही खास चीज है भाषा के साथ साथ, मॉड्यूलेशन। क्या होती है मॉड्यूलेशन? वॉइस चेंज। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि आज हम मॉड्यूलेशन पर बात कर रहे हैं, आज हम मॉड्यूलेशन पर बात कर रहे हैं, तो ये मॉड्यूलेशन हुई कायदे से? हुई या नहीं? आप हैरान होंगे, ये भी मॉड्यूलेशन है। जब आप वॉइस ओवर्स करते हैं, डबिंग करते हैं, क्योंकि रेडियो में आपका इतना अच्छा नाम हो चुका है कि आपको जगह जगह आवाज के काम के लिए बुलाया जाता है। लेकिन मॉड्यूलेशन यानी हमारी आवाज का उतार चढ़ाव। आप न्यूज़ बोल रहे हैं अलग ढंग से, आप उसमें एक कहानी सुना रहे हैं अलग अंदाज आएगा, आप कमेंट्री कर रहे हैं अलग आएगा, आप ड्रामा कर रहे हैं बिल्कुल अलग आ जाएगा, आप एक रेडियो फीचर बना रहे हैं बिल्कुल अलग आएगा, आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें भी किसका इंटरव्यू कर रहे हैं? आप एक फिल्मी हस्ती का कर रहे हैं जो बहुत नामी गिरामी फिल्म हस्ती है, जिनका नाम बहुत है, तो आप उनसे अलग ढंग से बात करेंगे। एक बिल्कुल जो युवा कलाकार है, आप उससे बिल्कुल अलग ढंग से बात करेंगे। मान लीजिए किसी वजह से आपको आज राष्ट्रपति जी का एक इंटरव्यू करने को मिल जाए, तो क्या आप उनसे वैसे ही बात करेंगे जैसे आप किसी कलाकार से या किसी डॉक्टर से? नहीं, वहाँ आपकी आवाज़ में एक इज्जत भी आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। आप जानते हैं कि आपके सामने कौन बैठा है। पद बहुत मायने रखता है। यह भी हो सकता है कि हम ज़ाती तौर पर किसी को नहीं पसंद कर रहे, लेकिन हमारे रेडियो की रिक्वायरमेंट यह है कि आपको उन्हें इंटरव्यू करके आना है, आपको करना होगा।
जैसे आप अगर कोई इंटरव्यू कर रहे हैं या प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रल होकर सब कुछ करना होगा। ये नहीं कि मैं फला को तो पसंद करता हूं, फला को नहीं करता। हमारी चॉइस वहां नहीं चलती। हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं आपको एक दो चीज़ आपके हिसाब से लाया था। मैं आपने किसी ने कभी कोई वॉइसिंग की है या एंकरिंग की है कहीं पर भी? आपने की? क्या की थी? रेडियो उसमें क्या था? आप नरेटर थी? तो वो फिर आपका कैरेक्टर भी थी, एक बार नरेटर भी थी। नरेटर क्या होता है पहले तो ये बताइए। जो स्टोरी को बताता है, मतलब एक फ्लो देता है स्टोरी का कि स्टोरी उसका एक टेक्निकल नाम क्या होता है? स्टोरी को एक फ्लो में रखना। सूत्रधार। ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने रेडियो की न्यूज़ सुनी है? किसी ने कभी भूले भटके? आपके घर में कोई सुनता होगा। एक टिपिकल स्टाइल हुआ करता है रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो ये एक ऐसा चैनल रहा है, ऐसी संस्था है, इसमें एक हुआ करते थे देवकी नंदन पांडे, जो न्यूज़, अगर हम बात करते हैं न्यूज़ की तो सबसे पहला नाम उनका आता है। जब वो रिटायर हुए तो इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने 8-10 दिन बाद नोटिस किया कि उनकी आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने पूछा कि आजकल पांडे जी क्यों नहीं आ रहे? पता लगा वो रिटायर हो गए। तभी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि उन्हें 2 साल के लिए फिर से बुलाया जाए। और उस वक्त जो नाम हुआ करते थे, देवकी नंदन पांडे, अशोक वाजपेयी, विनोद कश्यप, जयनारायण शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, राजेंद्र चुग, और मेरे लिए ये बहुत एक खुशी की बात है कि इन लोगों के साथ मैंने स्टूडियो शेयर किया और शायद उनका मैं 1% मुश्किल से सीख पाया। काश मैं अगर उनके लेवल का आधा भी पहुंच जाता तो मैं एक बहुत अच्छा ब्रॉडकास्टर माना जाता, बहुत अच्छा। वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि एक एक शब्द छन छन कर आ रहा है। वो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ में बेस हो। आप शायद जानते होंगे कि लड़कियों की आवाज़ में भी बेस होता है, वो उनके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। मेल वॉइस में भी अगर बेस है तो वो आपके लिए बहुत एक बड़ी खासियत हो जाती है। लेकिन अगर आपकी आवाज़ में बेस नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप न्यूज़ नहीं बोल सकते, आप प्रोग्राम्स नहीं कर सकते, आप कमेंट्री नहीं कर सकते। उसके लिए पहली शर्त है आपकी क्लैरिटी, स्पष्टता। आप क्या बोल रहे हैं। आप अपने आपसे भी कई बार पूछिए कि मैं अगर ये बोल रहा हूं या बोल रही हूं तो क्यों, किसके लिए, किस संदर्भ में। जब भी आप कुछ बोलें तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि मैं अपने ऑडियंस से अगर बात कर रहा हूं तो क्या उनको ये समझ में आ रहा है। और एक और चीज़, इस वक्त आप लगभग मेरे ख्याल 80-100 के आसपास तो होंगे यहाँ। फर्ज कीजिए ये मेरा स्टूडियो है और मैं यहाँ से प्रोग्राम कर रहा हूँ रेडियो का, तो आप सभी को ये लगना चाहिए कि प्रदीप शर्मा सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात कर रहा है। वो हमारा आपस में एक नाता जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रदीप शर्मा अपने प्रोग्राम में कामयाब नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं एक प्रोग्राम किया करता था, दिल ढूंढता है, सैड सॉन्ग्स का। और उसे ये रात को होता था 11 से 12 और दिन में मेरा होता था लव बर्ड्स। मैरिड कपल को हम बुलाते थे। उसमें मैं बहुत ज़्यादा पैपी होता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे देखकर कोई कहता नहीं है कि आप पैपी भी हो सकते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं तो फिर माइक्रोफोन पर हम दूसरे रंग से होते हैं। तब मेरा वाकई माइक इतनी दूर होता था, आपने देखा होगा मेरी आवाज़ की थ्रो काफ़ी है। लेकिन जब मैं रात का शो करता था मेरा माइक्रोफोन ये होता था, डीप वॉइस। क्योंकि सैड सॉन्ग्स, शेरो शायरी, इस तरह की उसमें कुछ स्क्रिप्ट तैयार करते थे कि लोग वो कहते थे कि हम नहीं बता सकते हम क्या महसूस करते हैं।
और मेरे लिए और खुशी की बात, ये प्लीज़ ये मत सोचिएगा मैं कोई तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक लाइट ऊपर की ऑन कर रखता था रात को, जो मेरे पैनल पर आ रही है पूरे, जिसमें कंसोल है, और सामने मेरे गलीचे पर, जिसे हम कालीन भी बोलते हैं, कुछ इंजीनियर्स या मेरे बाद जिनकी ड्यूटी है वो आरजेज, वो वहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ कि हम वो फील करना चाहते हैं कि क्या लगता है। और हमने वो दौर भी देखा जब बोरे भर भर कर हमारे लिए लेटर्स आते थे। तब मैसेजेस नहीं थे, ईमेल नहीं थी। या आप शायद हैरान हो जाएंगे, विविध भारती या हम जो लोग प्रोग्राम्स किया करते थे, विविध भारती पर भी मैं करता था, तो उसमें बोरे भर भर कर लेटर्स आते थे और हम उन्हें छांटते थे बाकायदा, और जेन्युइन फरमाइश होती थी। प्राइवेट चैनल्स की तरह नहीं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन प्राइवेट चैनल में आप मुझे बताइए कितने प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें वाकई एक आम आदमी से बात करते हो, जो आपके जूते ठीक करता है, जिसको मोची बोलते हैं, उससे बात करता हो, नाई की दुकान पर जाकर बात करता हो, एक किसान से जाकर उसके खेत में खड़ा होकर बात करता हो, जो लाइव आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो भी एफएम पर, और उसकी पसंद को हम पूरा करते थे। जो तसल्ली मिलती थी वो शायद नहीं मिल पाएगी आपको। हम एक बनावटी सा कुछ, मैं कह सकता हूं, खोल हमने ओढ़ लिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि एक एलीट क्लास के लिए ही रेडियो है, एलीट क्लास के लिए ही टीवी है, एलीट क्लास के लिए ही अब हमारे सीरियल्स और फिल्म्स हैं। क्यों? जैसे एफएम के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए है। पता नहीं ये गलत बात क्यों फैला दी गई। एफएम मीन्स आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा है क्रिस्टल क्लियर वॉइस। ऐसी आवाज़ आती है कि आपको अपनी आवाज़ से प्यार हो जाए। क्या ये मैं ही बोल रहा हूँ? हैरानी होती थी कई बार जब रिकॉर्डेड हम कोई प्रोग्राम सुनते थे तो खुद कुछ जगह उसको फिर रिवाइंड किया, अरे ये वाकई मेरी आवाज़ है। आप कोलकाता जाइए, वहाँ पर रविंद्र संगीत, जब आप उसको एफएम पर सुनते हैं आपकी आंखें खुद ब खुद ऐसे बंद हो जाती हैं। क्यों? वो तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपकी पैपीनेस है, वो ऐसा भी नहीं है किसी फिल्म का गाना हमने आपको सुना दिया, नो, लेकिन वो आता है वैसा। अब देखिए, मैंने आपके लिए एक छोटी सी लिखी थी। अब हम पुराने हैं तो हमारी स्क्रिप्ट भी पुरानी है बेचारी, क्या करें, बहुत पुराने मॉडल हैं। कुछ गाड़ियां तो बंद कर दी हैं सरकार ने, लेकिन हमें स्पेशल परमिट मिला हुआ नहीं, आप चलते रहिए। जैसे मैं न्यूज़ का आपको बताऊं, रेडियो न्यूज़ में अभी भी वो ड्रामा नहीं है जैसा टीवी में है। टीवी में हम क्या करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, मेरे माइक लगा हुआ है ना, मुझे ज़रूरत क्या है कि मैं चिल्लाकर बोलूं। दूसरे, जब टीवी पर समाचार आते हैं तो आपके कैप्शंस भी आते हैं, आप बहुत आराम से बोल सकते हैं। जहां ज़रूरी है आप हाई पिच पे जाइए, जहां नहीं नहीं। मान लीजिए मैं अब एक प्रोग्राम कर रहा हूं और बिल्कुल मैं उस ढंग से बात कर रहा हूं कि जैसे मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन बेवजह। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आज आपको क्या सुनाने जा रहा हूं। भाई क्या ज़रूरत है इसकी? ऐसे रेडियो प्रोग्राम को भी लोग लाइक नहीं करते। आप बिल्कुल इस तरह साउंड करने चाहिए कि सबको ये लगे कि ऐसा मैं भी बोल सकता हूं या बोल सकती हूं। तभी तो आपके मन में भी आएगा, काश मुझे भी ये प्रोग्राम करने का मौका मिले। आप में से कहानी कभी किसी ने सुनाई हो, किसी को भी? प्यासे कौवे की कहानी सुनिए। अगर आपको एक छोटे से बच्चे को सुनानी हो तो आप कैसे सुनाएंगे? और एक मान लीजिए आपकी उम्र वालों को ही हमने सुनानी है तो कैसे सुनाएंगे हम? क्योंकि आपको सबको आती है, आप मेहनत नहीं कर रहे, तो मैम आपके कमरे में आके क्या कहेंगे आपके क्लासरूम में? क्या आपने प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी? कहानी कंप्लीट, कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है, कहानी कंप्लीट हो गई। लेकिन छोटे बच्चे के साथ आपको छोटा बच्चा बनना ही पड़ेगा। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी में होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा विश्वास अपने टीचर पर होता है। अगर वो ये कह दें कि ये सूरज है, लाइट नहीं है,
वो घर जाके अपनी मदर से, फादर से लड़ पड़ेगा, मेरी मैम ने कहा है ये सूरज है। तो आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। जब हम बच्चों के प्रोग्राम्स किया करते थे, हमारे साथ एक थी चांद रानी सक्सेना, क्या बोलती थी वो, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि बच्चों में एक बच्चा घुल गया, मिल गया उन्हीं के साथ। आप कभी देखिए, आपको एक बड़ा प्यारा सा बच्चा नजर आता है, आप अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसके गालों को थोड़ा सहलाते हैं या उसके साथ इस तरह बात करते हैं जैसे आप उससे भी छोटे बच्चे हों। तो जब तक आप उस लहजे में एक कहानी नहीं सुनाएंगे तो बच्चे के पास नहीं पहुंच पाएगी। यही रेडियो में जब आप कहानी सुनाते हैं तो वो कहानी इस तरह होनी चाहिए जो उनकी जबान से निकली लेकिन आपके दिल में उतरती चली गई। आपको लगे कि वाह, ये थी एक कहानी जिसको आप काफी देर तक याद रखते हैं। रेडियो के प्रोग्राम की एक सबसे खासियत होती है उसकी ओपनिंग। अगर आपकी ओपनिंग अच्छी है तो आपका लिसनर आपके साथ जुड़ जाएगा। आपकी अगर ओपनिंग लचर है, कमज़ोर है, तो आप मानकर चलिए आप लाख चाहकर भी उसे बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये वो दौर नहीं है कि जब सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन था और एक ही दूरदर्शन था। आपको अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा, आपने इनका प्रोग्राम लगा लिया, इनका भी अच्छा नहीं लगा, उनका लगा लिया। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्राम वो इस तरह से शुरू हो कि लोग आपसे बंध जाएं। फॉर्मेट आपको पता ही है, जो मैंने अभी आपको बातचीत में बताया। आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आप अपनी एक टॉक वो भी दे सकते हैं, आप रेडियो फीचर बना सकते हैं, आप ड्रामा बना सकते हैं, इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम कर सकते हैं, फिल्म संगीत के साथ आप कर सकते हैं, आप बच्चों का प्रोग्राम कर सकते हैं, आप कमेंट्री कर सकते हैं। कमेंट्री के साथ आपको हमेशा एक शब्द सुनने को मिलेगा, ओबी। कभी किसी ने नोटिस किया ये ओबी क्या कहते हैं? हम वैसे पढ़ेंगे अब आने वाले वक्त में, कुछ शायद थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कुछ पहली बार सुन रहे हैं। आउटडोर ब्रॉडकास्ट। जब हम कमेंट्री करते हैं कहीं और से करते हैं, मान लीजिए प्रगति मैदान में अभी ट्रेड फेयर लगता है, अभी लगने वाला है, नवंबर में लगेगा। स्टूडियो एंड पर आपके 1 या 2 आरजेज होते हैं और आपके 5 या 6 साथी फील्ड में होते हैं। तो वो जो आपसे बात कर रहे हैं वो आउटडोर ब्रॉडकास्ट कहलाता है। वो बाहर से आपसे बात कर रहे हैं और स्टूडियो में सारी बात आ रही है और हमारे लिसनर सुन रहे हैं, बीच बीच में हम गाने सुनाते रहते हैं। अब जैसे मैं न्यूज़ का अगर आपको बताऊं, जो मैंने कहा था कि एक टिपिकल स्टाइल होता है, तो शायद आपने कभी भूले भटके सुनी हो तो आपको याद आ जाएगी। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रदीप शर्मा से समाचार सुनिए। उत्तर कोरिया की धमकी के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। 20 से अधिक जहाज़ों ने लिया हिस्सा। गलत सूचना फैलाने वाले 10 यूट्यूब चैनलों पर सरकार का एक्शन, 45 वीडियो भी किए गए ब्लॉक। नवरात्र के पहले दिन छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। और हैदराबाद में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। पहले हेडलाइंस, उसके बाद न्यूज़, क्योंकि हेडलाइंस ये तो मैंने वैसे ही अभी आपके लिए लिखी हैं, नहीं तो 7 या 8 हेडलाइंस होती हैं जो मेन बुलेटिन होता है। उसके 3 हिस्से बनाते हैं 5-5-5 मिनट के। पहले हिस्से में 2 हेडलाइंस, दूसरे भाग में 2 हेडलाइंस, तीसरे में 2 हेडलाइंस, उसके साथ साथ कुछ और न्यूज़। और जब 5 मिनट कंप्लीट होते हैं तो बीच में एक लाइन आती है, ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। पता तो होना चाहिए कहाँ, रेडियो में आपका कोई लोगो तो जा नहीं रहा, ऑल इंडिया रेडियो। आपको अपनी आवाज़ से कहना है। रेडियो में सिर्फ 2 चीज़ होती हैं, याद रखिएगा, साउंड और साइलेंस। साइलेंस जहां आपके प्रोग्राम का हिस्सा है वहां वो एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। नहीं तो 2 या 3 सेकंड का पॉज आ गया, इट मीन्स आपने क्राइम किया। लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है, वो क्या करते हैं, ठक 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 ठक, क्या हो गया रेडियो को मेरे, अचानक फिर आवाज आ जाती है। एक जल्दबाजी कभी मत कीजिएगा। जैसे क्या मैं एक सुना सकता हूं बहुत छोटा सा पीस अपने प्रोग्राम का?
रात को जो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग करते थे दिल ढूंढता है, सैड सॉन्ग्स का। सैड सॉन्ग्स का मतलब यही है, आप टूटे फूटे दिलों की बात करेंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे जहां आपका दुख वो आता है निकल कर। लेकिन वो मजबूरी यह है कि हमारे कैमरा लगे हुए हैं ये, क्योंकि मॉनिटर्स नहीं है, वरना मॉनिटर पर जो आवाज़ जाती है फिर वो एक अलग जाती है। तो इसमें यह है, अब आप सिर्फ ये सोच कर देखिए, रात को 11 से 12 का एक आपका प्रोग्राम चल रहा है, 2-3 गाने निकल चुके हैं, और उस प्रोग्राम को कभी भी लोग मैंने नहीं सुना किसी से कि वो 2-3 लोग एक साथ मिलकर सुनते हों। जैसे बिनाका गीतमाला हमारे घर में सब सुनते थे, हमारे पड़ोसी भी आ जाते थे। तो बिनाका गीतमाला अमीन सायानी साहब का एक सुपर हिट प्रोग्राम था, रेडियो सीलोन से होता था, और उसे सुनने के लिए 20-20, 25-25 लोग, क्योंकि सबके पास रेडियो नहीं हुआ करते थे, तो रेडियो सेट जिनके घर में है और जिसका बहुत अच्छा रिसेप्शन है उसको सुनते थे। बाहर कम से कम 20 फीट का छत पर हमारे एंटीना लगा होता था, उससे एक तार आया, वो रेडियो में लगाया, और मैजिक आई होती थी, वो क्लोजेस्ट मतलब उसका जो होता था उसमें लिया और फिर वो आता था, तो वो हम उसको सुना करते थे। तो अब अगर इसमें मान लीजिए आपका वो प्रोग्राम चल रहा है, रात का एक माहौल, आप अकेले सुन रहे हैं, आपकी आंखें बंद भी हो सकती हैं। याद है वो दरख्त जहां हम पहली बार मिले थे? मैं आज भी हर शाम उसी पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूं। मैंने यकीन किया है तुम्हारी बातों पर, तुम्हारे वादे पर। जानता हो तुम नहीं आओगे, जानता हूं हमेशा की तरह अपना वादा नहीं निभाओगे, लेकिन ये दिल तुम्हें बेवफा मानने को तैयार नहीं। वफा जिससे की बेवफा हो गया, जिसे बुत बनाया खुदा हो गया। तो जैसे ही लास्ट लाइन आई और आपका गाना फेड इन, तो आपकी आवाज और इसके पीछे हल्का सा सूदिंग सा म्यूजिक जो बहुत हल्का हल्का चल रहा है, तो आपका एक वो माहौल क्रिएट करेगा। दूसरे, जब आप इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जहां आपकी बहुत एक अलग सी स्क्रिप्ट आ जाए, यकीन मानिए आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आपकी आवाज़ खुद ब खुद भर्रा जाती है, और वही आपकी कामयाबी है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी हो जाए कि जब आप रोने की बात कर रहे हैं तो आप रो रहे हैं, लेकिन रेडियो पर आप रोएंगे कैसे? टीवी पर तो आपका क्लोजअप लगा दिया गया, आपकी आंखें लाल हो रही हैं, नम हो रही हैं, आंसू टपक रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। रेडियो पर या तो कोई आपका साथी आपको सपोर्ट करेगा, अगर प्ले कर रहे हैं, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, रो रहे हो, कुछ भी इस तरह का आएगा। या आप अकेले हैं तो आपकी हल्की हल्की सिसकियां आएंगी। और एक और बात याद रखिएगा, मैंने बॉडी लैंग्वेज की बात की थी शुरू में ही, अगर आप हंसने की बात कर रहे हैं तो आपका चेहरा खिलखिलाना चाहिए, खिलखिलाएगा, नहीं तो आर्टिफिशियल लगेंगे आप। जब आप रोने की बात कर रहे हैं तो भूल जाइए आपका चेहरा कैसा लग रहा है, रोने में किसी का चेहरा सुंदर नहीं दिखता, याद रखिएगा। और अगर आपको इस फील्ड में कामयाब होना है तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, बहुत ज़रूरी है इन बातों का ध्यान रखना। भाषा को आप किस तरह से सुधारें, यह एक बहुत अहम सवाल है। अभी जब मैंने आपसे पूछा, समाचार पत्र आप नहीं पढ़ते, लिटरेचर आप नहीं पढ़ते, कुछ सुनते आप नहीं, देखते आप नहीं, अलादीन का चिराग अगर आपके पास है तो बात अलग है, नहीं तो बहुत मुश्किल है, फिर कैसे सीख पाएंगे। और एक और बात, जब आपकी यहाँ क्लासेस होंगी तो मेरी एक ये सलाह ज़रूर मानिएगा, जब जब आपसे कोई एक्सरसाइज करने को कहा जाए तो पहला हाथ आपका उठना चाहिए, पहला हाथ। हमारे मन में एक झिझक क्या होती है, मैं कैसा लगूंगा, क्या मैं ठीक बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा। अरे अगर आपने ठीक बोला तो सब आपके लिए तालियां बजाएंगे, नहीं बोला तो जहां कमी है वो बताएंगे। और एक और चीज़,
अगर आप सब कुछ जानते होते तो आप यहां क्यों होते? अगर आपको सीखना है, मैंने क्रिकेट की बात की थी, आपको बैटिंग सीखनी है, तो जब तक आपके हाथ में बैट नहीं होगा, कोई आपका हाथ पकड़कर किस तरह से आपका बैट आना चाहिए इस बॉल पर वो नहीं बताएगा, आप कैसे सीखेंगे? क्योंकि आपने क्या सोचा हुआ है, हर बॉल को बस खेल देना है मुझे, वो नहीं चलता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। और कुछ शब्दों का मैं आपको और बताना चाहता हूं जो मैं ख़ास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूं। पहली बात, इसमें उच्चारण की आज तक मुझे ये अवसर मिला है, कुल मिलाकर अगर मैं देखूं 40 साल में, तो 7 या 7,500 हज़ार स्टूडेंट्स उनसे मेरा वास्ता पड़ चुका है। 7-7,500 हज़ार स्टूडेंट्स, और आज तक मुझे कोई 1 से 100 तक की गिनती नहीं सुना पाया, सही गिनती, क्योंकि यहां बोर्ड नहीं है। अगर मैं सिर्फ 12-14 अंक भी लिखूंगा तो उनमें से आपके 50% गलत होंगे, यह मेरा दावा है। तो जब हम अपनी गिनती को नहीं जानते तो हम कैसे बात करेंगे? मैंने एक नामी गिरामी चैनल में जब मतगणना चल रही थी तो उस पर एक एंकर से सुना 389 मतों से आगे। ये होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बोलना क्या है। मैं कईयों से पूछता हूं गिनती आती है? हाँ, 1 से 30 तक तो आती है। उसके बाद क्या गिनती खत्म हो जाती है? आप मानकर चलिए बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे जहां आपको फिगर बोलनी ही पड़ेगी, तो आप कैसे करेंगे? एक और बात, कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने तो उर्दू पढ़ी नहीं है, तो हम कैसे नाम ले देंगे किसी का? हमने तो नहीं उर्दू पढ़ी। भैया आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, किसी का नाम तो नहीं बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए मोहम्मद जलील किसी का नाम है और आप उसको मोहम्मद जलील कह दें, बात बिगड़ गई। जलील का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ, निखद, निकृष्ट, निकम्मा। ये गाली के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, या बेइज्जत करना किसी को, उसको जलील किया, आप इस्तेमाल करते हैं। जलील का मतलब जिसका तेज बहुत होता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये कहा जाता है ना। या आपने कहा कि जंग में तो सब जायज़ है, जंग होता है रस्त, जंग होता है लड़ाई, और आपका एक सरिया है जिसका ऐड आता है जंग रोधक, यानी लड़ाई नहीं होने देगा वो, जबकि उसमें होना चाहिए जंग रोधक। एक और चीज आपने देखा होगा, रेडियो में भी टीवी में भी एक शब्द इस्तेमाल होता है। होम मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सब बोल रहे हैं गृह मंत्री। क्या हमारे पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें प्लेनेट मिनिस्ट्री कुछ काम कर रही हो? गृह तो वही होता है, शब्द है गृह मंत्री। जैसे आजकल चल रहे हैं पितृपक्ष, इसको भी लोग बोल रहे हैं पितृपक्ष। अभी एक चैनल से फोन आया था, उसने आज सुबह ही पूछा है, सर हमारी एक स्टोरी जा रही है, ये पितृ होता है या पितृ होता है, क्योंकि यहाँ लड़ाई हो गई है। वो प्रोड्यूसर और वीओ आर्टिस्ट के बीच में कुछ चल रहा होगा, तो मैंने कहा भैया मेरी जानकारी के हिसाब से पितृपक्ष होता है। अब आपके प्रोड्यूसर अगर आपसे लड़ाई कर रहे हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे शब्द जो इस्तेमाल होते हैं। एक इसमें आपको और ध्यान रखने वाली बात मैं बताता हूं, जब भी आप रेडियो प्रोग्राम करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे, कमेंट्री करेंगे, हर बार आपके लिए एक नया चैप्टर खुल जाता है। आप जो कल बोलकर आए वो आपको आज नहीं बोलना, तो इसलिए आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगी कि हमें ये शब्द नहीं आता था, ये फलां लैंग्वेज का है या कुछ है। जब हम 26 जनवरी की कमेंट्री करते हैं, आप जानते ही होंगे कि उसमें हमेशा किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं, और उनमें कईयों का नाम इतना टेढ़ा होता है कि आपको पता ही नहीं उसको बोलना क्या है। तो कैसे पता लगाएंगे आप? सबसे अच्छा जरिया होता है कि आप उस कंट्री के दूतावास में फ़ोन करें या उनसे मिलने जाएं, उनसे पूछें कि इसका सही उच्चारण क्या है। जैसे अभी जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आबे, उनका निधन हुआ, उनको गोली मारी गई थी। जब वो हमारे मुख्य अतिथि बन के आए तो हम सब, रिनी खन्ना, मैं और कई थे कमेंटेटर्स,
तो हम सब कर रहे हैं ये अबे है क्या है। अब अगर वाकई वो अबे हम बोलते, उनका नाम होता तो एक अलग बात है, लेकिन कितना अजीब लगता है अबे हम कैसे बोलते हैं, ये शिष्टाचार में भी नहीं आता। वो नाम होता अलग बात है, फिर भी हमने उसको कंफर्म किया और हमने राहत की सांस ली कि उनका नाम आबे निकला। तो ये आप लोगों को इतनी मेहनत करनी होगी, ये आप मानकर चलिए कि जितना आप आसान समझ रहे हैं मीडिया को, आसान नहीं है, लेकिन आप ही में से निकलेंगे सब, जिन्हें देखकर फिर हम भी फ़ख्र से कहेंगे कि हाँ, इनके साथ हम भी मिले हुए हैं या इनकी क्लासेस लेने का मौका मिला है। जो भी आज कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 12वीं की या ग्रेजुएशन की और वो एकदम से एक्सपर्ट हो गए और जाके उन्होंने न्यूज़ बोलनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। एक और चीज़, आप कभी भी ये डिमांड मत कीजिएगा रेडियो या टीवी के लिए कि हमारी इंटर्नशिप अभी करवा दो। इंटर्नशिप क्या होती है? जब आपने एक कंप्लीट कोर्स किया हुआ है और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जाते हैं या आपने क्या कुछ सीखा है वो जानना चाहते हैं। मैं जी न्यूज़ के लिए जाया करता था, प्राइम टाइम वॉइस ओवर्स के लिए, 98, 99, आप पैदा नहीं हुए होंगे शायद तब तक। उन दिनों मैं जाया करता था, तो वहाँ मैं अक्सर यही देखता था कि किस तरह से जो उस वक्त इंटर्न्स आते थे उनको वो डील करते थे। पहली बात से उनको पता लग जाता था इनको कुछ नहीं आता, और उनका क्या होता था, मेरी 2 चाय बोल के आ जा, फला टेप निकाल के ले आओ, मेरी 2 सिगरेट ले आओ। ये इंटर्नशिप थी। कुछ लोग ये करते थे, आपने कुछ सीखा ही नहीं था। दूसरी तरफ जब आप सीख कर जाते हैं, तो मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, जब वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वापस नहीं आते, उनकी नौकरी वहीं लग जाती है। तो आपका एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो मैंने कहा, और ये 2-3 बार रिपीट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके दिमाग में वो बात बैठे। आपके पास भाषा होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अर्थ के अनर्थ या आप किस तरह का वाक्य बना रहे हैं, भी शब्द मान लीजिए आपने आगे लगाया पीछे लगाया। जैसे हम लोग अपने आकाशवाणी फीचर्स बनाते थे, जिसमें हमारे लिए खुशी की बात है फर्स्ट अवार्ड भी मिला कई बार हमें, मतलब फर्स्ट प्राइज़ मिला उसमें। ऐसे बहुत से फीचर्स बनाए, तो उसमें हमारी जो टीम बनती थी, लड़ाई होती थी बाकायदा कि ये भी पहले आएगा या बाद में आएगा, ये शब्द पहले आएगा या बाद में आएगा, क्यों आएगा। जैसे उसने भी चाय पी, उसने चाय भी पी, फर्क पड़ गया आपका? क्या फर्क पड़ा? उसने भी चाय पी, उसने चाय भी पी। उसने भी में 2 लोग आ रहे हैं कि इन दोनों ने चाय पी, और अगर उसने चाय भी पी मतलब वो 2 चीज़ खाए, मतलब ये बात अब आपने इसलिए नोटिस की क्योंकि मैंने इसको इतना जोर देकर कहा, लेकिन हम नहीं समझ पाते जब हम ये सब कुछ गलत बोलते चले जाते हैं, हमारे वाक्य ठीक नहीं बनते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप बोलने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, और उसके लिए सबसे अच्छा एक ढंग होता है, पहले ये जो आपकी फैकल्टीज़ हैं ये आपको वैसे ही एक्सपर्ट कर देंगी। इसके बाद भी आप अपने 2-2, 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लीजिए, आपस में आप बातचीत कीजिए। आपने 3 ग्रुप बैठा लिए अपने आप, जब खाली टाइम है चलो आओ किसी बात पर डिस्कस करते हैं, वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त आपको ये लगेगा कि किसी तरह से ये वक्त जो हमें मिला है कैंटीन में ही गुजार लिया जाए, जबकि ये प्रोफेशनल कोर्स है आपका। याद रखिएगा, इसमें एक क्लास मिस करने का मतलब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आज जो हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त, कल वो आपके साथी जब कॉलेज में आएंगे जो किसी वजह से आज नहीं आ पाए, क्या ये सारी बातें एज इट इज़ आप उनको बता पाएंगे? आप क्या कहेंगे? सिर्फ रेडियो के ऊपर बात हुई थी, कुछ लैंग्वेज पर बात हुई थी, ओरिएंटेशन की बात हुई थी, बस ये बात हुई थी, लेकिन उसमें जो 2-4 अच्छी बातें हुई होंगी वो भी गोल, वो आप नहीं बता सकते। तो याद रखिए, आपने एक क्लास मिस की, आप बहुत पीछे चले जाते हैं। और ये दुनिया बहुत जालिम है, मैं बता दूं आपको। आप अपने साथियों को ही देखेंगे,
वो भी आपको इस बारे में कभी भी कोऑपरेट नहीं करेंगे कि मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, एग्जाम में मुझसे ज़्यादा नंबर ले जाएगा ये। आपके शुभ चिंतक सिर्फ 2 लोग होते हैं, मतलब 2 कैटेगरीज, माँ बाप, टीचर्स, जो हमेशा चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकल जाएं। आपका सगा भाई बहन भी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाएं। लिख लीजिए इस बात को। जब आपका सगा भाई बहन नहीं चाहेगा तो आपका साथी कैसे चाह सकता है? तो जो कुछ करना है, जो कुछ मेहनत करनी है, जो कुछ भी आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने बलबूते पे करनी है। आपको आगे बढ़कर कोशिश करनी है। मुझे करना है ये। जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हम झिझकते हैं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी कमियों का हमें पता नहीं लगेगा। इंट्रोवर्ट नहीं चाहिए इस फील्ड में। अंतर्मुखी जब आप हो जाते हैं तो आप बहुत कुछ लूज करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है अफसोस कहाँ होता है? मान लीजिए मैंने कुछ पूछा तो यहाँ 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे होंगे मन ही मन कि इसका जवाब ये है, ये है, ये है। वहाँ से अचानक जवाब आता है और वो मन ही मन कहते हैं यही तो मैं कहना चाह रहा था। तो क्यों नहीं कहा आपने? किसने रोका था आपको? लेकिन जिस वक्त आपने एक सही जवाब दिया, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आता है। अगली बार आप और अच्छा परफॉर्म करते हैं। और फिर जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तब पता लगता है कि आप किस तरह निखर कर सामने आ रहे हैं। जब आपसे बोलने के लिए कहा जाएगा और यहाँ होड़ लग जाएगी और फिर इनको ये कहना पड़े कि सब अपने अपने नाम की चिट बना दें, अब हम निकालेंगे, हमारे बस की नहीं है सबको एक साथ बुलाना। ये होना चाहिए आपके अंदर, ना कि ये कहें कि भाई आप 2 के सिवा कोई और नहीं है यहाँ। बहुत बहुत ज़रूरी है ये। और मेरे कहने पर अगर आप कर सकते हैं काम, रेडियो सुनना शुरू करें, टीवी भी देखें, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ें। और रेडियो सिर्फ और सिर्फ एफएम नहीं है। आप लोगों के लिए सिर्फ एफएम रेडियो है। रेडियो आप जानते हैं 95-98% के बीच में सुना जाता है पूरी कंट्री में। सबसे ज़्यादा रीच है रेडियो की, एक एक इंसान तक पहुंचता है। रेडियो का सबसे बड़ा एडवांटेज, महंगी स्क्रीन्स नहीं खरीदनी आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें कनेक्शंस खरीदने की ज़रूरत नहीं कि महीने में इतने रुपए आपको देने ही हैं। आपका एक छोटा सा मोबाइल है, उस पर भी आप सुन सकते हैं। आप AM, FM, शॉर्टवेव सब कुछ सुनिए, आपको पता लगेगा अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स क्या होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ FM की दुनिया से निकल कर देखिए। रेडियो में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वो कुछ जो भी सोचते हैं, जो विजुअल मीडिया में होता है, सिवाय तस्वीरों के, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप क्रांति ला सकते हैं रेडियो में। अमेरिका में आज की डेट में भी इतना सुना जाता है रेडियो कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन हमने क्या सोच लिया, रेडियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिल्मी गाने। जबकि रेडियो की दूसरी विधाओं से जब आप जुड़ेंगे, वो आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। 2-3 बार चर्चा हुई वॉइस ओवर, डिस्कवरी है जैसे। डिस्कवरी में भी आपकी आवाज़ का जो महत्व है वो कितना है। एक जगह आपकी नरेशन चलती है और एक जगह आपका कैरेक्टर, जिसके लिए डबिंग होती है। मान लीजिए एक आप नरेशन कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ की, और दूसरी तरफ वहीं आप एक एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं, तो आपका कितना फ़र्क आ जाएगा बोलने में। मैं आपको एक चीज़ इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि ये समझ पाएँ। जैसे डिस्कवरी, बात वही आ जाती है कि डिस्कवरी के नाम से कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि भारत में डिस्कवरी की शुरुआत मेरी आवाज़ से हुई थी, और दिल्ली में हमने वॉइस ओवर किया था वो, जबकि दिल्ली और फिर मुंबई बहुत किया, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ये सब। और हालांकि गरिमा जी भी आरजे हैं, लेकिन मेरे लिए गौरव की बात है कि जो हमारे सीनियर मोस्ट आरजेस हैं कंट्री के 2-3, उनमें एक नाम मेरा भी है। और हम लोगों ने तब शुरू किया था जब 83-84 में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर FM चल रहा था। हमने उस दौर में शुरुआत की थी और फिर बाकायदा प्रोग्राम्स किए। तो
तो जैसे डिस्कवरी का आपने देखे हैं, डिस्कवरी के कुछ प्रोग्राम्स या नहीं? तो अच्छी बात तो ये रहेगी कि आप डिस्कवरी का हिस्सा बन पाएं। वीओ जैसे आप एक जानकारी दे रहे हैं, विजुअल्स के साथ आपका वीओ चल रहा है। शेरनी ने घास चर रहे हिरणों में से अपना शिकार चुन लिया था। अब सही मौके का इंतजार था। शेरनी के कंधे उठे हुए थे। यह निशानी थी कि हमला कभी भी हो सकता है। शिकार को शायद ये एहसास भी नहीं था कि मौत बेहद करीब है। शेरनी जानती है कि जल्दबाजी दिखाने का मतलब है शिकार का हाथ से निकल जाना। ये आपका एक नरेशन का पोर्शन हो गया। अब वहां जो बैठे हुए इसको शूट कर रहे हैं या एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो अगर इस पिच पर बोलेंगे तो शेरनी सबसे पहले तो उन्हीं के पास आएगी हालचाल पूछने कि भाई आप क्या कर रहे थे यहां। तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, ये बाकायदा आपका ड्रामा चलता है फिर। और डबिंग में एक और बात ध्यान रखिएगा, डबिंग होती है या तो आप उसी भाषा पर फिर से उसी बात को रिकॉर्ड करें, या इंग्लिश पर आप हिंदी कर रहे हैं, या तमिल कर रहे हैं, मलयालम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब वहाँ आपका हो जाएगा, जैसे शेरनी अक्सर क्या 95% मामलों में इसी तरह शिकार करती है। तो आपकी ये फुसफुसाहट आएगी वहाँ। बाकी का काम आपका माइक्रोफोन कर रहा है, आपका जो साउंड इंजीनियर है वो करेगा, मिक्सिंग होगी, तो आपको वहाँ महसूस ही नहीं होता क्या हो रहा है। और आप शायद ये नहीं जानते होगे, जब हम 1 घंटे की फिल्म की रिकॉर्डिंग करते हैं, मेन नरेशन, तो कई बार उसमें 6-6 घंटे लगते हैं। ये इतना आसान नहीं होता, वो बात नहीं आती। और साउंड इंजीनियर कभी भी आपके साथ नरमी नहीं बरतता। उसको अपना प्रोग्राम देखना है, वो नाम नहीं देखेगा, वो ये भी नहीं कहेगा कि आपने कितना काम किया। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कहीं काम करने जाएंगे, जब आप यहाँ से पास आउट होंगे, आप अगर ये भी कहेंगे ना कि ये देखिए मेरी फाइल भरी पड़ी है, इतने सारे मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये है वो है, आप क्या करना चाहते हैं, वॉइस ओवर्स, वो कहेंगे आपके ये सर्टिफिकेट्स ये रखे हैं, ये माइक्रोफोन है, आ जाइए बोलिए ज़रा। वहाँ ये भी लेटर नहीं चलेगा जी मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लेटर दिया है कि भाई इसको तो ज़रूरी आपको प्रोग्राम देने हैं। वो कहेंगे जब आप बोलना ही नहीं जानते मैं आपको प्रोग्राम क्यों दूँ। और जैसे ही आपने माइक्रोफोन पर आकर अच्छा बोला तो वो आपसे सीधी सी बात करेंगे कि आप इस हफ्ते में कितने दिन खाली हैं और कितनी कितनी देर आप आ सकते हैं। हमारी ये डबिंग है, हमें वॉइस ओवर्स करने हैं, तभी बात बनेगी। आप में से किसी का कोई सवाल अगर है, स्पेसिफिक सवाल, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। ये भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जब आपके पास सवाल नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आप उस फील्ड के बारे में जानने में थोड़ा सा कम इच्छुक हैं। सभी ग्लैमर में जाना चाहते हैं टीवी, लेकिन याद रखिए वहाँ पर भी आपको बोलना तो पड़ेगा। आशा भोसले जी ने एक बार एक प्रोग्राम में कहा था, एक छोटे बच्चे ने गाना गाया सारेगामापा, मैं यट जमला पगला दीवाना, है ना, और रफ़ी साहब का बहुत वो एनर्जी से भरा हुआ गाना है। तो उन्होंने उस बच्चे को कहा कि देखो बेटा आपने गाया बहुत अच्छा, सुर में ताल में सब कुछ, लेकिन इस गाने में जो एनर्जी चाहिए उसके लिए मुंह खोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो जब तक आपके सवाल नहीं होंगे, आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, इसमें हमें किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, या हम इस कोर्स को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएँ, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी सवाल होते हैं आपके। तो कैसे बात बन पाएगी। शब्दों के उच्चारण की जो मैं बात कर रहा था, जब मैंने आपसे कहा था ग्रह और गृह, इसमें 2-3 शब्द मैं आपको और बताना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खुदा कहते हैं और उसमें अगर नुक्ता नहीं लगाते, खुदा, खुदा मतलब जैसे गड्ढा खुदा हुआ है, तो हम जिसे गॉड कहते हैं उनके लिए हम गलत शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से कोई ऐसे हैं जो उर्दू पढ़े हुए हैं, मुस्लिम परिवार से हों? नहीं,
क्योंकि अब बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको लिखकर दिखाता। जो शब्द लिखा जाता है खुदा, उसमें अगर बिंदी को उठा के ऊपर लगा दिया जाए या ऊपर को नीचे लगा दिया जाए, सिर्फ बिंदी से, खुदा की जगह उसका उच्चारण हो जाता है जुदा, अलग होना। तो इसलिए कहा जाता है कि एक बिंदी खुदा से जुदा कर देती है। यानी हमारी भाषा कई बार हमारा बनता हुआ करियर बिगाड़ देती है। जो आपसे बात करेगा, अपने चैनल में आपको रखना चाहेगा कि आप मेरे रेडियो स्टेशन में आइए, आप यहाँ प्रोग्राम्स तैयार कीजिए, आप वॉइस ओवर्स कीजिए, आप आरजे बन जाइए, लेकिन बातों ही बातों में जब ये बात क्लियर होगी कि आप बोलना नहीं जानते, तो फिर वो आपको सिर्फ यही कहेगा, ठीक है आप अपना CV छोड़ जाइए, हम आपको कॉल करेंगे जब हमारे ऑडिशंस होंगे। उसका मतलब यही होता है कि फ़िलहाल तो आप ये मानकर चलिए कि गुंजाइश नहीं है, बेसिक आपके पास गुंजाइश नहीं है। और लैंग्वेज के लिए मैं एक फाइनल बात कहता हूँ। मैं हमेशा बच्चों से एक सवाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ इतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे वो जवाब जानना चाहूँ, शायद आप ना दे पाएँ। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, आप बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो हैं दौड़ भी रहे होंगे, कुछ सिर्फ लेटे हुए ही हैं, मतलब वो बैठ भी नहीं सकते, लेटे रहने पर मजबूर हैं। ये थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इनमें एक कॉमन फैक्टर है। क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। मैं आपको बता देता हूं, हमारी स्पाइन, अगर हमारी रीढ़ मजबूत है, कमज़ोर नहीं है, चोट नहीं लगी हुई, हम दौड़ भी सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, हम एक जिम्नास्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है। लैंग्वेज किसी भी प्रोग्राम, उसकी रीढ़ होती है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्यों ना हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास भाषा नहीं है तो प्रोग्राम बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। तो आज से आपको एक प्रण लेना चाहिए कि आपको अपनी लैंग्वेज बोलने पर, क्लैरिटी पर और अपना ज्ञान बढ़ाने पर, यानी आपको अब सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और प्रोग्राम्स देखने भी चाहिए। मनोज मुंतशिर जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनका एक वीडियो मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये बात मैंने आज से लगभग 35 साल पहले भी कही थी। जब तक आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आपको अच्छे आइडियाज़ भी नहीं आएंगे, याद रखिएगा। और रेडियो या टीवी में जब आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि आपके पास नए नए आइडियाज़ हों। जब आप एक अच्छी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे जो मेरा कल का प्रोग्राम है उसकी ओपनिंग में कुछ इस तरह कर सकता हूँ। आपको सिर्फ आइडिया मिला, आपके शब्द अलग हैं, वाक्य अलग हैं बिल्कुल, और उसी वजह से आपके प्रोग्राम की तारीफ हो जाती है। मनोज मुंतशिर ने यह भी कहा कि जो मैंने गाने लिखे हैं वो मैंने कोई साहिर से प्रभावित होकर, कोई दाग देहलवी से प्रभावित होकर, कोई किसी से, मैंने सिर्फ एक सुना कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा और उनका गाना बिल्कुल अलग। आप बता भी नहीं सकते कि वो कौन से गीत या गज़ल से उनके प्रभावित हुए हैं। आपके पास एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो आपके रजिस्टर में हो शब्दों का, कुछ अच्छे शेर जिसमें हो, कुछ अच्छी कविताएं हों। मान लीजिए आपके यहाँ एक एक्सरसाइज चल रही है जिसमें देशभक्ति की बात है, मान लीजिए, अब आपके पास उस तरह की पंक्तियां ही नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? जब हम बात करते हैं सीमा पर अगर कोई हमारे जवान लड़ रहे हैं, शहीद हो जाते हैं, और यहाँ हम धर्म के नाम पर लड़ रहे होते हैं, तो आप कितनी खूबसूरती से उस बात को रखते हैं कि यहाँ हम इन छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं और सीमा पर जो अपनी जान दे रहे हैं उनके मन के जो जज्बात हैं वो कुछ अलग हैं। जैसा कि साहिर साहब ने भी कहा था, ना हम इस वक्त हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना ईसाई, अगर कुछ हैं तो हैं इस देश इस धरती के शैदाई, शैदाई मतलब आशिक, इसी को जिंदगी देंगे, इसी से जिंदगी पाई, लहू के रंग से लिखा हुआ इकरार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। ये आपके इतने कपलेट्स आपके ज़बानी होने चाहिए, जो सिचुएशन आए आप बोल पाएं। मुहावरे आपको आने चाहिए, लोकोक्तियां आपको आनी चाहिए। आपके रेडियो प्रोग्राम में अगर जब वो जाती हैं तो कितनी खूबसूरत लैंग्वेज हो जाती है।
कितने आप देखिए, हम ऑर्नामेंट्स उनको भी पहनते हैं, लड़के भी बालियां पहनते हैं, टाई लगाते हैं, किसी ने कड़ा पहना हुआ है, किसी ने कुछ, सिर्फ इसलिए कि आप आकर्षक दिखना चाहते हैं। आपकी भाषा भी तो आकर्षक होनी चाहिए। उसकी खूबसूरती अच्छे शब्दों के चयन से, मुहावरों से, लोकोक्तियों से, कुछ ऐसे उदाहरणों से जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं, उन पर निर्भर करती है। तो मुझे बताइए कि वाकई जब अगली मुलाकात होगी तो आप में से कितने ईमानदारी से बता पाएंगे या बताना चाहेंगे कि हमने ये एक्सरसाइज शुरू की हैं? कितने आप में से? अभी भी कुछ हाथ खड़े नहीं हैं क्योंकि उनको विश्वास है। ये भी ईमानदार एक जवाब है कि भाई हम शायद ना कर पाएँ, लेकिन अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कि भाई आप इतना सोच रहे हैं। देखिए, हम लोगों का सबका काम यही है, आपके अंदर एक चिंगारी पैदा करना। आग तो आपके अंदर लगनी चाहिए। फिर विशाल जी को शायद याद होगा, मैं एक न्यूज़ रीडर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक कन्वोकेशन में उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि प्रदीप सर ने कहा था ये कुछ नहीं कर सकता। और देखिए आजकल मैं न्यूज़ बोलता हूँ। तो मुझे भी बुलाया गया फिर बोलने के लिए। तो मैंने एक बात कही थी कि यहाँ जितनी भी फैकल्टीज़ हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, उनका मकसद क्या है मुझे बताइए आप। आपको उस काबिल बनाना, जिस विश्वास के साथ आप यहाँ आए थे उस विश्वास को ना तोड़ना, और जब आप यहाँ से बाहर निकलें तो आपको लगे कि हाँ मैं कुछ बनकर निकला हूँ। वो दो तरह से ही होता है। एक, जिस तरह हम आपको पढ़ाते हैं। नंबर दो, अगर आप नहीं मान रहे, ढीठ हैं पक्के, तो आपको एक ऐसा ताना मारना कि आप उसे एक चैलेंज के तौर पर ले लें। लेकिन जीत हमारी है। हमने आपके अंदर आग पैदा कर दी ना। आप हमसे नफरत कीजिए, पूरी जिंदगी नफरत कीजिए, हमें एक तसल्ली है कि हम जो चाहते थे हमने कर दिया। हमने आपको एक चैलेंज दिया ना, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आप ऐसे नहीं पढ़ रहे थे, आप नाक ऐसे पकड़ना नहीं चाहते थे, आप ऐसे पकड़ना चाहते थे, ठीक है। हम लोगों का काम क्या है, जैसे एक थाली में भोजन परोसा जाता है, छोटे बच्चे को कैसे बताया जाता है कि रोटी, उसके टुकड़े को ऐसे तोड़ा जाता है जिसको हम कौर कहते हैं, दाल लगाई, सब्जी लगाई, खाई। अब ये आपकी क्रिएटिविटी, आप टांग के नीचे से हाथ निकाल के खाओ, आप शीर्षासन लगाकर खाओ, ये आपकी क्रिएटिविटी है। हमें सही चीज़ बतानी है, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी काम आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज तक मैंने कोई देखा नहीं है ऐसा जो शीर्षासन लगाते हुए चाय पी रहा हो या खाना खा रहा हो। खाना वैसे ही खाना पड़ेगा आपको। मेरे ख्याल से काफ़ी है। थैंक यू प्रदीप जी। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स ने इसमें कितना नोट किया, लेकिन मैं पूरे टाइम जितने उर्दू के वर्ड्स आप यूज़ कर रहे थे, बोल रहे थे, मैंने अलग से एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है उर्दू शब्दों की। वो मैं स्टूडेंट को जब थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो मैं उनको शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि हो सकता है कि मुझे और सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो मैंने वो उतने वर्ड्स पूरे लिखे हुए हैं और अब मैं देखूँगी कि मेरे पास वो वर्ड्स हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब हम नॉर्मल बातचीत भी करते हैं तो हमारी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो लगता है कि उर्दू के हैं, और वाकई में उर्दू फ़ारसी, जो सर ने बोला कि हम अपनी भाषा में बहुत सारे देशों के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम लोगों के यहाँ पहले एक हिंदी का एक पेपर हुआ करता था, हिंदी लैंग्वेज का, जो खुदा ना खास्ता यूनिवर्सिटी में या लोगों के फेल होने की वजह से वो हटा दिया गया। मेरे ख्याल से मनस्वी ने भी पढ़ा है और गरिमा ने भी पढ़ा है वो पेपर, लेकिन वो हटा दिया गया। उसमें स्टूडेंट्स को बताया जाता था कि इस भाषा में जापानीज़ वर्ड्स भी हैं, चाइनीज़ वर्ड्स भी हैं, जो हम चाय, संतरा, ये सारा वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे देश के नहीं हैं। और नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता ये शब्द आए कहाँ से हैं। जो ये शब्द आए हैं, हमारी डिक्शनरी अपने आप बहुत स्ट्रांग हो गई। और जो हिंदी की बात सर ने बोली कि अगर सिर्फ हिंदी में बोलने लगे तो तुम लोगों को आधी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी सिर्फ हिंदी नहीं है।
संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलेंगे फिर भी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को संस्कृत के वो शब्द नहीं पता जो कि हिंदी में अडॉप्ट कर लिए गए हैं। तो हमें अपनी भाषा को जिस तरह से मजबूत बनाना है, और तुम लोग क्योंकि बेसिक्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन पढ़ो या रेडियो जॉकी और न्यूज़ रीडिंग पढ़ो, दोनों में ही आपको उतने ही एफर्ट्स करने, क्योंकि न्यूज़ रीडिंग आपको दोनों स्क्रिप्ट बनानी है। न्यूज़ के लिए आपको न्यूज़ सुनना पड़ेगा, उसमें कहाँ साउंड बाइट हम यूज़ करते हैं, कहाँ हम वीओ यूज़ करते हैं, न्यूज़ में वॉक्स पॉप की ज़रूरत है या नहीं है, हम अलग से किसी वॉक्स पॉप को अरेंज करते हैं जैसे एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, या हमें लगता है कि अभी बजट आने वाला है उससे पहले आपने वॉक्स पॉप कर लिया, या एक पर्टिकुलर सोशल इशू को लेके आपने वॉक्स पॉप कर लिया। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें फॉर्मेट्स कौन से पढ़ने हैं। सर ने इतनी सारी बातें बताई और मुझे कुछ लोगों के हाथ में पेन पैड दिखाई दिया और कुछ लोग नोट भी कर रहे थे, रेस्ट केवल स्पीच सुन रहे थे। लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट हियर। यहाँ आपके लिए नोट करने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारी चीज़ें सर ने ऐसी बताई, जैसे कुछ वर्ड मैं भी अभी उठ के चली गई क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा था। उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें पता नहीं चलता कि ये गलत है या सही है, हम इसको कैसे बोलें। ज़रा वर्ड है, अब वो ज़रा है या जरा है? जरा बुढ़ापा होता है शायद, नहीं ज़रा वो तो ठीक है, और एक जरा, वही मैं कह रही हूँ, ज़रा बुढ़ापा है, ज़रा थोड़ा सा। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ अगर आपको पता है कि नुक्ता हमें यूज़ करना है तो कहाँ करना है, कहाँ अवॉइड करना है। जैसे सर ने कहा कि बिंदु, चिंता और चिता, चिंता में बिंदु लगा रहे हो, अगर चिता में बिंदु लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें ये सर्च करना पड़ेगा कि कौन से शब्द हमारे लिए, जब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्योंकि आपको टॉक की स्क्रिप्ट भी लिखनी है, फीचर की स्क्रिप्ट भी लिखनी है, आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उसके लिए भी आपको कलेक्ट करना है, रिसर्च वर्क करना है और फिर डॉक्यूमेंट्री मेकिंग करनी है, पैनल डिस्कशन बनाना है, जो मैंने कल भी कुछ बातें बताई थी। जो भी फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे वहाँ आपकी भाषा अगर अच्छी नहीं है, आपको ये आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है लेखन को लेके, तो फिर बहुत मुश्किल है काम करना। और ये मुश्किल को हमें आसान बनाना है, इसीलिए सर यहाँ आए हैं और इन्होंने इतनी सारी बातें तुम्हारे साथ डिस्कस की हैं। क्योंकि भाषा एक ऐसी है जो आप हिंदी, क्योंकि आप मिक्सिंग करते हो, आप मोस्टली आप लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ इंग्लिश एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको जो रेडियो पढ़ना है वो आपको AIR को फॉलो करना, ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो करना है। जब RJ की बात करती, वैसे RJNR में जो सिलेबस है एक्चुअली वो सिलेबस ही गलत है। RJNR में न्यूज़ रीडिंग होती ही नहीं है। वहाँ आपको ब्रीफ बताया जा सकता है कि लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है, या कुछ ब्रीफ न्यूज़ हेडलाइंस बता दी जाएं, बट नॉट एज न्यूज़ रीडिंग या न्यूज़। वहाँ पे कोई न्यूज़ रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यूज़ रीडिंग का कॉन्सेप्ट केवल FM गोल्ड में है, या आपका विविध भारती में आपको मेन बुलेटिन जो होते हैं उनके थोड़ा सा न्यूज़ उसमें अब सुनाई जाने लगी है। विविध भारती में भी पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। FM रेनबो में भी वही है कि जो छोटा सा थोड़ा सा बुलेटिन की हेडलाइंस हैं वो आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया जाता है। बेसिकली जो FM गोल्ड का नेचर है वो बदल गया है, वो पूरी तरह न्यूज़ पर आधारित हो गया है, न्यूज़ बेस्ड चैनल हो गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो अभी हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने विविध भारती की बात की। अब विविध भारती, मैंने कल भी बोला था कि आज से तुम रेडियो सुनना शुरू कर दो। कितने लोगों ने अभी शुरू किया मुझे नहीं पता। जब तक सुनोगे नहीं काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और तुम्हारा आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैम ने भी क्लास ली, एक दिव्या मैम ने एक सेक्शन में क्लास ली है और एक सेक्शन में भी इन्होंने गरिमा मैम ने क्लास ली है। गरिमा में ऑलरेडी RJ रही हैं, तुम लोगों को पता होगा, जिसने भी इंट्रोडक्शन कराया होगा तुम्हें पता चल गया होगा कि वो ऑलरेडी RJ हैं। तो आपके पास पढ़ाने वाले अगर ऐसे लोग हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका है सीखने का। ट्राई करोगे सीखने का। मैंने ये बताया कि मैं 86 से AIR से जुड़ी हुई हूँ, तो तुम्हारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर सीखना चाहोगे। क्योंकि जिन
जिस सेक्शन को नहीं पढ़ा रही हूँ उनको पता है और वो चाहते हैं कि मैं उनसे पढ़ूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं इस बार बी सेक्शन को पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उनको भी मुझसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो इस बार मैं क्यों इतना मुंह बना रही हो, तो जिस स्टूडेंट को वैसे भी कुछ सीखना है, मेरे पास मेरे रूम में कभी भी कोई आ जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं, ये तुम सबको पता है। जिनको हिंदी में जिन्होंने वैक कोर्स किया था उनको भी पता है कि उनके संग में मैंने छोटी छोटी स्क्रिप्ट लिखवाई थी, विशाल सर ने छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स लिखवाई थी, तो आपने तभी भी सीखा। तो सीखने के लिए कोई टाइम और वो नहीं कि 3 बजे क्लासेस हुई और आप चले गए, उसकी कोई जिसको सीखना है वो रुको। हम लोग यहाँ शाम के 5 बजे तक होते हैं, आपको जब सीखना है आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं विशाल सर से, मुझसे भी, और आपके पास दो नए टीचर्स आए उनके साथ भी, ठीक है। तो ये सेशन वाकई में मेरे लिए तो बहुत इम्प्रेसिव था और मैंने जितना नोट किया है वो मेरी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है, जो मैं तुम लोगों को जब पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे ज़रूर उसका इस्तेमाल करूँगी। सो थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद।